कैसे? रेट में वही है, रेट इसमें कोई खास इंक्रीज नहीं होता है, रेट तो लगभग सेम जैसी है। लास्ट ईयर का जो रेट है वही रेट है। और फिक्स रेट ही है वो जो भी आपने वो फिक्स किया हुआ है? रेट बिल्कुल फिक्स आएगा और लो मार्जिन में हम लोग सेल करते हैं। और पिछले 35 साल से हम यहाँ अहमदाबाद, मेरा जो जन्म है वो यहाँ भारत में ही हुआ है, लेकिन तिब्बत जो है अभी चाइना के कब्जे में है। हाँ वही वही। हाँ, तो हमने अभी फिलहाल तिब्बत देखा ही नहीं। તો કેમ છો મિત્રો, આજે આપણે આવી ગયા છીએ અમદાવાદના સુંદર સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર કે જ્યાં દર વર્ષે શિયાળામાં તિબેટિયન માર્કેટની શરૂઆત થાય છે। તો મિત્રો જાણીશું તમામ ઇન્ફોર્મેશન આ તિબેટિયન રેફ્યુજી માર્કેટ વિશે। વિડીયોને એન્ડ સુધી જોવાનું ચૂકશો નહીં અને જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો આવા જ અમારા આવનારા વિડીયોની અપડેટ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લેજો। તો મિત્રો આ તિબેટિયન રેફ્યુજી માર્કેટમાં તમને વિન્ટર ક્લોથ્સ કે ગરમ કપડાની ઢગલાબંધ વેરાયટીઝ જોવા મળશે। નાનાથી માંડીને મોટા લોકો સુધીના પણ કપડાં તમને અહીં મળી રહેશે। સાથે જ જો પ્રાઇઝની વાત કરીએ તો અહીં પ્રાઇસ રિઝનેબલ કે અફોર્ડેબલ જ હોય છે અને ફિક્સ હોય છે। તમે ભાવ વધારે ઓછો નથી કરી શકતા કારણ કે એ લોકોએ પહેલેથી જ ભાવ ફિક્સ કરેલો હોય છે। દરેક ક્લોથ્સ પર તમે એ રેટ કે એનું જે લેબલ છે એ જોઈ શકો છો। क्या रेट है इसका? कैप का अलग अलग है। इसका फिक्स रेट ही है ना? 190 है ना? 100 रुपया 100। તો મિત્રો તમે અહીંથી સુંદર જેકેટ્સ, શાલ, મફલર, ગરમ ટોપી, ગ્લોવ્સ, લોક કોટ, સ્વેટર, બ્લેન્કેટ અને ગરમ મોજા જેવી અનેક વસ્તુઓ ખરીદી શકો છો। તો મિત્રો આ જે તિબેટિયન રેફ્યુજી માર્કેટ છે એ આપણા ભારત દેશમાં અલગ અલગ રાજ્યમાં અલગ અલગ શહેરોમાં શિયાળાની શરૂઆત શરૂ થતું હોય છે। અને આ જે તિબેટિયન માર્કેટ છે એ દર વર્ષે તિબેટિયન શરણાર્થી સમુદાય માટે આવકનું એક મુખ્ય સ્ત્રોત છે। અને અહીંના જે તમામ પ્રોડક્ટ છે એ હસ્તકલા પર આધારિત છે અને તિબેટિયન સંસ્કૃતિને પ્રતિબંધિત કરે છે। અને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ તમને આ માર્કેટમાં ભારે ભીડ જોવા મળશે। કેટલાનું છે? 350 ફિક્સ રેટ છે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આ માર્કેટ ખૂબ જ મોટું માર્કેટ છે અને દરેક વેરાયટીઝના વિન્ટર ક્લોથ કે ગરમ કપડાં તમને અહીંથી મળી રહેશે। અને રિવરફ્રન્ટ સિવાય પણ અમદાવાદમાં આ વર્ષે જે અંધજન મંડળનું જે ગ્રાઉન્ડ છે યુનિવર્સિટી પાસે ત્યાં પણ તમને આ સેમ તિબેટન રેફ્યુજી બજાર જોવા મળશે। ગયા વર્ષે જે માર્કેટ હતું એ હેલ્મેટ સર્કલ પાસે હતું રિવરફ્રન્ટ સિવાય, અને આ વર્ષે અહીં રિવરફ્રન્ટ સિવાય તમે જે અંધજન મંડળ પાસે જે ગ્રાઉન્ડ છે ત્યાંથી પણ જે વિન્ટર ક્લોથ્સ છે આ માર્કેટના એ પરચેસ કરી શકો છો। क्या लगता है आमा? 550 है ना? कितना है? 200। ये कितने साल तक के बच्चे को चलता है? आ जाता है 350। મિત્રો ભારત અને તિબેટના સંબંધો ગુરુ અને શિષ્ય જેવા છે અને આ ભાવનાએ આજ સુધી પોતાનું મહત્વ જાળવી રાખ્યું છે, જેમાં ભારત ગુરુ તરીકે અને તિબેટ શિષ્ય તરીકે ભાગ ભજવે છે। આ સંબંધ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની મજબૂત માળખાને ઉજાગર કરે છે, જ્યાં એક સંસ્કૃતિ બીજા માટે માર્ગદર્શક બની રહે છે અને આ પરંપરા આજ સુધી પણ તાજી અને પ્રેરણાદાयक છે। तो अभी हमारे साथ है लावा भाई जो तिबेट से बिलोंग करते हैं। तो लावा भाई हर साल की तरह इस साल भी ये तिबेटियन मार्केट जो है वो रिवर फ्रंट पे अभी लगा है, तो इस साल क्या नया है? हर साल की तरह इस साल भी है ना, हर एक चीज़ नवा है। डिज़ाइन लगभग 60-70% सब नवा डिज़ाइन है।
लास्ट ईयर का जो कस्टमर है उनकी डिमांड के हिसाब से जो लास्ट ईयर जो पसंद अलग अलग तरह का पसंद करते हैं उसी के हिसाब से हम मतलब फीडबैक वाइज आप चेंज करते रहते हो? हाँ जी, हर साल वेराइटीज चेंजेस होते रहते वेराइटीज लगभग 60 से 70% चेंजेस आते रहते हैं। 30-35% जो लास्ट ईयर का ज़्यादा डिमांड रहते हैं वो वही रखते हैं, बाकी सारा है ना चेंजेस आते हैं यहाँ से। और दूसरा प्राइस वाइज क्या है, मतलब रेट वाइज कुछ इंक्रीज हुआ है या कैसे? रेट में वही है, रेट इसमें कोई खास इंक्रीज नहीं होता है, रेट तो लगभग सेम जैसी है। लास्ट ईयर का जो रेट है वही रेट है। और फिक्स रेट ही है वो जो भी आपने वो फिक्स किया हुआ है? रेट बिल्कुल फिक्स आएगा और लो मार्जिन में हम लोग सेल करते हैं। और पिछले 35 साल से हम यहाँ अहमदाबाद में 35 साल से? हाँ जी, और मार्जिन भी बिल्कुल हम लो मार्जिन में ही सेल करते हैं। और दूसरी बात लोकेशन की बात करें तो अभी ये जो हमें वो रिवर फ्रंट का मार्केट है जो रेफ्यूजी मार्केट बोलते हैं, तिबेटियन रेफ्यूजी मार्केट, अहमदाबाद में दूसरे आपके कौन से लोकेशन है वो भी आप बता सकते हैं? हमारा वैसे हमारे एक ही एसोसिएशन में हमने 2 लोकेशन रखा है। एक तो ये रिवर फ्रंट है अभी लगभग ये 6-7 साल हो गया, और दूसरा जो है वो लास्ट ईयर हम लोग हेलमेट सर्कल में था। इस बार हम लोग है ना यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है, ओके, अंजन मंडल का बगल में हमारा एक ग्राउंड है यूनिवर्सिटी का, उसी ग्राउंड में हमने रखा। वहाँ पे भी सेम मार्केट है? वैसे मेरा जो जन्म है वो यहाँ भारत में ही हुआ है, लेकिन तिब्बत जो है अभी चाइना के कब्जे में है। हाँ वही हाँ, तो हमने अभी फिलहाल तिब्बत देखा ही नहीं है। ऐसा है? ऐसा है, हाँ जी। अच्छा। और हमारा जो मम्मी पापा है वो लगभग 1959 में ये हमारा गुरुजी हमारा दलाई लामा है उनके साथ में मतलब भारत में ये शरणार्थी के तौर पे। हाँ, शरणार्थी के तौर पे रह रहे हैं। वहाँ से हम लोग है ना चाइना से हम लोग वहाँ से चाइना का अंडर में नहीं रहेगा बोल के हम लोग है ना गुरु जी के साथ सही है यहाँ भारत में बराबर। हम शरणार्थी के तौर पे हम लोग यहाँ रह रहे हैं। भारत सरकार ने हमारे को हर एक चीज़ सरकार ने ये किया हुआ है, फैसिलिटी दिए हुए हैं। घर है, वो खेती बाड़ी है, हर एक चीज़ है। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है? हाँ जी, ये बिजनेस तो अभी लगभग 60s में हमारा जो बुजुर्ग है, जैसे हमारा मम्मी पापा है, दादा दादी है, उन लोग ने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, मतलब काफ़ी पुराना बिजनेस बोल सकते हैं? काफ़ी पुराना है। और लगभग तिब्बतन कम्युनिटी में जैसे हम लोग यहाँ जितना भी भारत में तिब्बतन शरणार्थी रह रहे हैं उनका जो 80 से लेकर 90% का इनकम सोर्स यही है, शूटर बिजनेस ही है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। खेती बाड़ी है वो तो इतना खास। अच्छा, मतलब विंटर की सीज़न के आसपास ये जो भी आपका ये मार्केट है वो बिजनेस है बस। और बाकी तो खेती बाड़ी करते हो? खेती करते हैं, लेकिन खेती में इतना ये नहीं है, वो सब मौसम के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। सही है। लेकिन अभी आज का डेट पे खेती का इतना ये नहीं होता है। तो ये हमारा जो इनकम सोर्स है ये तो लगभग यही है, शूटर बिजनेस है। और ये ऑल इंडिया में छोटा शहर में भी है, 12 शहर में। जैसे अहमदाबाद में ये रिवर फ्रंट पे, वैसे कई सारे शहरों में भी आप? पूरा हमारा जो गुजरात का जितना भी सिटी है सब में है। गुजरात के अलावा भी होगा ना? ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में है। सही है। आपके यहाँ से आई थिंक काफ़ी लोग आर्मी में भी हो गए, मतलब मिलिट्री में भी हो गए? मिलिट्री में भी है, और वहाँ से डिस्चार्ज हो गए और यहाँ भी बिजनेस भी करता है। और जो मतलब कोई कॉलेजेस में जैसे कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद में जिसको काम नहीं मिलता है तो मम्मी पापा के सपोर्ट में यहाँ पे आ जाते हैं सपोर्ट के लिए। सही है, ऐसा भी है।